السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آئیے، جیسا کہ یہ سلائیڈ روزانہ ہی آپ کے سبق میں رکھی جاتی ہے، ہم روزانہ ہی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کلمات سے ہی بنا ہوا ہے نا، کلمات ہیں قرآن پاک میں، تو کلمات ان میں سے کبھی کوئی کلمہ اسم ہوتا ہے، کبھی کوئی کلمہ فعل اور کوئی کلمہ حرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا، فعل سیکھا، ہم نے فعل میں ہم نے فعل ماضی کو مکمل طور پہ دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اسم میں سے اسم ضمیر کو پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ ضمائر دو طرح سے ہوتی ہیں نا، ضمیر متصل اور منفصل، تو اس میں سے ہم نے ضمیر متصل کو پڑھا، پھر ہم نے ضمیر متصل کا استعمال فعل ماضی کے ساتھ سیکھا۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی ہم چند حروف اور اس کے ساتھ پھر ہم ضمائر سیکھیں گے۔ تو یہ ضمائر متصل ہیں جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے، تھوڑا اس پہ غور کریں، اس پہ میں نے 14 صیغے لکھے ہیں اس طرح سے۔ دیکھیں یہ، ہاں اس میں ایک چیز لکھنے کی رہ گئی، تب میں بھول ہی گئی، اس کو اب سیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ یہ ہیں مذکر اور مؤنث غائب کے صیغے۔ مذکر اور مؤنث غائب، اسی طرح یہاں پر بھی تھوڑی بس 2 منٹ، ٹھیک ہے۔ مذکر غائب یعنی یہ جنس ہو گئی یہاں پر، اور یہ تعداد، جنس کے ساتھ ساتھ یہاں کلام کے اجزاء میں سے بھی شامل ہے، جیسے واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب ہو، واحد مؤنث غائب ہا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو آپ علیحدہ علیحدہ بھی پورے ٹیبل میں بنا سکتے ہیں۔ واحد مذکر غائب ہو، واحد مؤنث غائب ہا، پھر تثنیہ کے صیغے ہیں، تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث غائب یہی صیغہ ہوتا ہے نا، ہما، اس لیے یہاں میں نے ایک ہی لکھا۔ پھر جمع مذکر غائب ہم اور جمع مؤنث غائب ہن۔ پھر ہم آتے ہیں حاضر کی طرف، یعنی مخاطب یا حاضر ایک ہی بات ہے، مذکر یا مؤنث، حاضر یا مخاطب۔ واحد کا صیغہ ہے تو واحد مذکر مخاطب کا، واحد مؤنث مخاطب کی۔ تثنیہ میں مذکر یا مؤنث مخاطب کے لیے سیم صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی میں نے ایک ہی لکھا۔ پھر جمع مذکر مخاطب ہے تو کم، جمع مؤنث مخاطب ہے تو کننا۔ پھر واحد مذکر ہے یا مؤنث متکلم یی اور نی، اور جمع مذکر یا مؤنث متکلم نا۔ تثنیہ میں بھی نا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ضمائر متصل تھے جو کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہیں۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج جو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ پڑھنے سے ہم قرآن پاک سے ہزاروں الفاظ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
تو آج ہم قرآن میں استعمال ہونے والے چند حروف، ٹھیک ہے، چند حروف کے ساتھ ضمائر متصل سیکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا نا، ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کبھی فعل کے بعد آتی ہے، کبھی اسم کے بعد آتی ہے، اور کبھی حروف کے بعد آتی ہے۔ فعل کے بعد ہم نے سیکھ لی، آج ہم حروف کے بعد سیکھیں گے۔ تو یہ کچھ حروف ہیں آپ کے سامنے جو قرآن پاک میں متعدد بار استعمال ہوئے ہیں، جیسے لی، کبھی لی لام کی زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے لا، ٹھیک ہے، اور معنی لیے یا کے لیے۔ پھر بھی، ساتھ، فی، میں، ٹھیک ہے، میں لفظ ہے، یہ میں نہیں بلکہ میں، یعنی جس کو ہم ان بولتے ہیں، آئی این، ان انگلش میں ہے نا، وہ ہے یہ میں۔ ان کے بارے میں، اور کبھی کبھی ان کا معنی سے بھی ہوتا ہے۔ الا کی طرف، من سے، علا پر یا اوپر، مع ساتھ، عند پاس، بین درمیان۔ یہ ایسے یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم حروف کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھتے تھے کہ حروف ایسا کلمہ ہوتے ہیں جن کے اپنے معنی تو ہوتے ہیں لیکن وہ الگ سے استعمال میں نہیں آتے۔ اب دیکھیں نا، لی، اس کا معنی لیے، کے لیے، کیا چیز، کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جبکہ ہم نے ضمیر پڑھی، اسم میں ہم نے ضمیر پڑھی تو ضمیر کا ایک برا معنی تھا نا۔ اسی طرح ہم نے فعل پڑھا تو فعل میں تو پورا جملہ ہی بن جاتا ہے، لیکن حروف خالی یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ حروف یا تو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کے آئیں تو ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان حروف کو ضمائر متصل کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لی، جس کا معنی ہے لیے یا کے لیے۔ جب لی، اس کے ساتھ یائے متکلم کی ضمیر ملتی ہے نا، یہ، تب یہ لی پڑھا جاتا ہے، ورنہ باقی تمام ضمائر کے ساتھ یہ لا کی صورت میں ہی آتا ہے۔ جیسے غائب کی ضمیریں ہیں یہ ساری، پھر یہ مخاطب کی ہیں، پھر یہ متکلم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے غائب کا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ لکھا، مخاطب میں واحد مذکر مخاطب کا صیغہ لکھا، اور متکلم میں واحد مونس یا مذکر متکلم کا صیغہ لکھا ہے۔ باقی آپ خود ان سے بنائیں گے باقی کی گردان، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے، لی تھا تو جب اس کے ساتھ ہم نے واحد مذکر غائب کی ضمیر لگائی تو وہ کیا تھی، ہو، تو یہ بن گیا لہو، ٹھیک ہے، لہو، لکا، لی۔ لہو سے اگر ہم نے غائب کے صیغے پورے کرنے ہوں تو کیا بنے گا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ پھر مخاطب ہے تو لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، ٹھیک ہے، لکن۔ پھر لی اور لنا، تسنیہ جمع میں لنا، نا ہوتا ہے نا تو لنا۔ اب لا کا معنی تھا لیے یا کے لیے، تو لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ پھر لکا تجھ ایک مرد کے لیے، لکما تم دو مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لا کی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم دونوں کے لیے یا ہمارے لیے۔ اس میں مذکر مونس دونوں میں سیم، ٹھیک ہے۔ تو اب باقی آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ حروف دیکھ لیں، ان کے معنی دیکھیے، ٹھیک ہے، پھر ضمیر کے ساتھ لگا کے ان کے معنی اب آپ نے خود بنانے ہیں۔ جیسے بی کا معنی ساتھ، ہی، اس کے، ہم نے پڑھا تھا نا، اس ضمائر کے بہت سارے معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اب ان میں سے یہاں پر جو معنی ہمیں مناسب لگے گا ہم وہی استعمال کریں گے۔ ہم نے ہو کا معنی پڑھا تھا نا، اس کا، اس کی، اس کے، تو اب دیکھیں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے بھی، اس کے ساتھ، بی کا معنی ساتھ، ہی اس کے، بھی اس کے ساتھ، بکا تیرے ساتھ، بی یا میرے ساتھ۔ اسی طرح فی ہی اس میں،
ठीक है। फी का माना था मैं, फी ही उस में, फी का तुझ में, फी या मुझ में। फिर अनहु उसके बारे में, अन का तेरे बारे में, अन्नी मेरे बारे में। ये था ना अन और नी, तो अब यहाँ भी इदगाम हो रहा है ना, अन और नी। देखिए अन में नून साकिन है और अगला नून मुतहर्रक है, तो जब दो एक जैसे हर्फ आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो इदगाम हो जाता है, उनको तशदीद के साथ एक ही हर्फ बना लिया जाता है। इस तरह अन और नी मिलके बन गए हैं अन्नी। फिर इला का माना था की तरफ, इलैही उसकी तरफ, इलैका तेरी तरफ, इलैया मेरी तरफ। मिन से, मिनहु उससे, मिन का तुझसे, मिन्नी मुझसे। फिर अला ऊपर या पर, अलैहि उस पर या उसके ऊपर, अलैका तुझ पर या तेरे ऊपर, अलैया मुझ पर या मेरे ऊपर। मा साथ, माहू उसके साथ, माका तेरे साथ, माइया मेरे साथ। इंदा पास, इंदहू उसके पास, इंदका तेरे पास, इंदी मेरे पास। फिर बैना दरमियान, बैना हु उसके दरमियान, बैना का तेरे दरमियान, बैना नी मेरे दरमियान। ठीक है, ये थे हमारे हुरूफ जिसके साथ हमने जमायर को देखा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पूरी बना के बताई है ना जमायर, इसी तरह आपने इनमें से हर एक के साथ पूरी पूरी गिरदान बनानी है जमायर की। फिर यहाँ पर कुछ आयात कुरान पाक से हैं, देखें। फा खुराजा हुमा मिम्मा काना फीही, फीही है ना, हर्फ है और उसके साथ जमीर। फीही, फीही का माना, फी का माना में, ही उसमें। फ़अख़रजा ये याद है आपको ना, फा को निकाल के अख़रजा उसने निकाला, हुमा उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना ये फेल है हमारे पास, काना काना वो दोनों थे, फी ही उसमें। फिर अशारत इलैहि, अब आप ये आप बताएंगे ना, फिर मुझे सही समझ आएगी आपको समझ आ रही है या नहीं। जी मुंतहा बेटा आप माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा आप बताइए अब अशारत इलैहि इसका तर्जुमा कीजिए। ये दोनों चीजें आपने सीखी हुई हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो अशारत इलैहि है इसमें कितने कलिमात हैं, ये कितने कलिमात हैं? अशारत में दो कलमात हैं। कैसे? अशारा एक और ता एक है। वो क्या, वो क्या हुआ ता एक है अशारत की, ये क्या बात हुई? ता वाहिद मुनसाहिब है ना। तो ये मिलके ही बना है ना। अच्छा, अशारत का मतलब नहीं आता मुझे। अशारत इशारा करना से ही है, ठीक है। अभी हाँ, मैंने मतलब नहीं पूछा, मैंने ये ठीक। पूछा अशारत इलैहि ये कितने कलिमात हैं? दो है। दो कैसे? इलाही एक है और अशारत इलैहि अलग एक है। है, इलैहि एक कलमा है, ही लगा हुआ है आखिर में। तो ये एक ही कलमा है बेटा। नहीं, दो अलग है, लगे अलग अलग है। अभी हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग हुरूफ पढ़ रहे हैं? हैं। आज हमने जमीर, क्या सबक पढ़ा, हमारा टॉपिक सबक का क्या है, मेन पॉइंट बताइए। फेल मुत्तसिल और उसके साथ हुरूफ बनाना। फिर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, सॉरी। जमीर मुत्तसिल मेन टॉपिक नहीं है हमारा, क्या मेन टॉपिक है? हुरूफ। जमीर मुत्तसिल मेन टॉपिक तो बेटा हमारा पीछे गुजर गया। हुरूफ है। हुरूफ, हुरूफ हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हुरूफ के साथ हमने जमीर मुत्तसिल पढ़े। तो अब मुझे आप ये बताएं, इलैहि ये एक ही कलिमा है? नहीं, हम्म, अलग अलग कलमे हैं दो। कैसे? इलही, इलही अलग है, हम्म, लेकिन और ही अलग है। हाँ। अब इलई जो है ना ये हर्फ है, और ही क्या है?
एक सेकंड, ही हमने पढ़ा हुआ है। हाँ नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा हुआ। ही नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है बेटा। अच्छा। ये हु से ही बना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हु तो आपने वाहिद ये पिछली मुदक्किर है। स्लाइड मुझे लगता है सही से समझी नहीं है। हु, हुमा, हुम, ठीक। यहाँ मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब ये जो हु, हुमा, हुम है ना, इनसे पहले वाला हर्फ साकिन होता है ना, जी। या साकिन जब आती है, तो ये हु, हुमा, हुम ही में बदलते हैं, ही, हिमा, हिम बनता है। कोई भी लफ्ज साकिन हो या सिर्फ या? या साकिन। अच्छा। अच्छा ठीक है, तो वो वाहिद मुजक्किर गायब भी होगा। हाँ लेकिन ये है क्या ना, ये तो पहले बताएं ये है क्या। ये वाहिद मुजक्किर गायब है, ये जमीर है। हम्म। इसम जमीर है हाँ, मुत्तसिल। इसम जमीर है ना, ये इसम जमीर। अब देखें अशारत, ये क्या था, क्या है ये इशारा अशारत। हम्म। फेल था। फेल है। अशारत फेल है, इला क्या है। अम, अ, इसम जमीर। बेटा ये इलई क्या है। इलही, अम, पूरा मिला के फेल है। नहीं, हर्फ है हर्फ है। हाँ ये हर्फ है। और ये ही क्या है। ही इसम जमीर है। इसम। अब देखें जो पहली स्लाइड हमारी होती है, कलिमा की तीन अकसाम है, इस्म फेल हर्फ, क्या ये पूरा जी। हो गया। हाँ। है ना, इसम अशारत फेल, इलई, हर्फ और ही, इसम में से इसम जमीर है तो इसम ही है ना। हाँ, तो यही हो हम गया आपको पूरा। रोजाना समझाते हैं कि कुरान पाक में जितने भी कलिमात हैं वो तीन ही तरह के हैं, या तो फेल होता है, या वो इस्म होता है, या वो हर्फ होता है। ठीक है। ठीक है। अब आप इसका माना भी लगाएंगे। अशारत अशारा। का माना है इशारा करना, ठीक है, इशारा करना। अब आपने देखना है कौन सा सीगा, उसके हिसाब से माना लगाएं। अशारत, ता ता आखिर में। अम, अम, फेल में से हैं तो ता साकिन। हम्म। अ, वाहिद मोनिस गायब है ये। हाँ वाहिद मोहन्नस गायब, माना क्या होगा इसका। उस एक औरत ने इशारा किया। शाबाश, इलैहि। इलई, इलई में इलई है, हम्म। हम्म। की तरफ ही है। हाँ हाँ, की तरफ। अब ही भी है साथ में, तो क्या माना होगा। ही वाहिद, वाहिद मुजक्किर गायब के लिए इस्माइल था, उस एक औरत ने इशारा किया उस एक मर्द की तरफ। हाँ सही, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा बेटा, अगर हम अच्छी तरह से अलामात को समझ लेते हैं ना, तो माना हमें खुद ही लगाना आ जाता है। अब माना मैंने तो नहीं ना आपको इस पूरे जुमले का बताया, आपने खुद ही लगा लिया। कैसे, आपने अलामात को समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ये बताइए ये क्या है। अब आप पहले ये बताएं ये कितने कलिमात हैं। कुल ना, ना से बना हुआ है, तो ओहो, कुल अलग है और ना अलग है। क्यों, क्यों जी, कुल अलग क्यों है बेटा, आपके क्यों लग रहा है कि कुल अलग कलिमा है। वो मिल गया उसके साथ। हम्म। मिल गया तो अलग नहीं है, एक ही है। क्या मिल गया उसके साथ। ये कुल ना आपस में मिले हुए हैं तो एक है, और आप मुझे लहुम दो ये अलग। बताएं, आप मुझे ये बताएं, जो ना है ना, ना ये क्या है। ना क्या है? हम्म। ना वो है, क्या तस्निया है, जमा, मुजक्किर हम्म, या मोनिस मुतकल्लिम है। है क्या। फेल है। तो फिर बेटा आप इसको दो कली में क्यों कह रही हैं। एक है एक है। जो फेल होता है ना, वो अपनी जी। अलामात के साथ मिलके ही पूरा एक कलीमा बनता है। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ कुलना की बात नहीं करती, मैं आपसे ये कहा कि इसमें मुझे बताएं, ये देखें, इस पूरे में बताएं ये कितने कलिमात हैं।
اس میں 3 کلمات ہیں. हाँ, अब इनको डिफाइन भी करें, कैसे ये 3 कलिमात हैं? قلنا فعل ہے हाँ हाँ, बोले बोले. اور لہم میں ہم جو ہے وہ ضمیر میں ہے. बेटा बोलते जाएं, जहां पे मौलिकी महसूस होगी मैं बोल दूंगी, बोलें आप. ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب تو لا نہیں لگے گا پیچھے حرف آئے گا تو پھر وہ پورا ایک کلمہ بن جائے گا. ओहो बेटा, जुड़ जाने से कलीमे एक नहीं बन जाता. हम इसको 2 ही कलिमात कहेंगे, एक कैसे होगा जब ٹھیک ہے हर्फ ٹھیک अलग है, हम अलग है. الگ ہوگا لیکن ایک ساتھ لکھا جائے گا. हाँ, वो अलहदा बात है कि एक साथ लिखा जाए, लेकिन ये कलीमे तो 2 ही रहने हैं, ला अलहदा हम अलहदा, इनको एक नहीं कहना, ठीक है. لا حرف ہوگا اور ہم हाँ اس میں जी हाँ. अब आप ये बताइए, कुल्ला, ये आपने बताया कि ये फेल है, तो ये कौन सा फेल है? یہ متکلم کا ہے تثنیہ یا جمع. मुतकल्लिम फेल है, पहले मुझे ये बताएं, मुतकल्लिम फेल है. نہیں تثنیہ جمع مذکر مونس متکلم ہے. یہ ये फेल है, तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, ये फेल है, इसको फेल कहते हैं. فعل کی گردان میں سے ہے وہ ہے جنس میں سے نہیں ہے کلام کے اجزاء میں سے ہے. सिर्फ कलाम के एग्जाम में से आप बोल रही हैं, आप मुझे ये सीगा बता रही हैं बेटा. یہ سیگا ہے یہ फिर فعل मैं तो आपसे फेल पूछ रही हूँ. فعل کون سا ہے अब देखें, کیا सीगा तो जमीर का भी है ना, सीगा तो जमीर का भी होता है, सीगा इसम مطلب؟ का भी होता है, सीगा फेल का भी होता है. अब मुझे क्या पता आपके जहन में ये क्या चीज है ये. फिर یہ आप فعل बताइए کا फेल है. फेल हमने स्लाइड पे पढ़े हैं 4 तरह से होते हैं ना, माजी, मुजारे, अम्र, नहीं, तो फिर ये कौन सा फेल है ये भी बताना होता है. فعل ماضی کا متکلم کا سیگا ہے یہ ہے نائے کیا ہوتا ہے ये अगर تثنیہ. आपके मोबाइल की बेल हो रही है ना, तो बेल ऑफ करें मोबाइल की बेटा. ہماری میری हाँ, اچھا ٹھیک ہے आपको शायद कोई मैसेजेस आ रहे हैं, उसकी बेल हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए क्लास में. اچھا ٹھیک ہے یہ تثنیہ یا جمع مذکر یا مونس متکلم ہے. बेटा इसका माना बताएं. اس کا دو پہ لگاؤں یا جمع کروں. जमा में लगा दें. اچھا جمع میں لگا دیں. ہم سب مردوں یا عورتوں نے کہا. गुड. लहुम. لہم لا کا مطلب ہے نہیں. ये नहीं कहाँ سے आ गया لہم बेटा? अभी لا. हमने पीछे हुरूफ पढ़े हैं, सबसे पहला हर्फ था ली या ला. اچھا 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 اس کے لیے لیے ہوتا ہے. हम्म اچھا لہم لا لیے ہم ایک سیکنڈ ہم ہوتا ہے ہم کون سی ہے رکنا ایک سیکنڈ. ہم جمع مذکر غائب ہے اسم ضمیر کا हम्म ضمیر متصل سے جمع مذکر غائب ہے تو اچھا اچھا اس طرح بنے گا کہ لہم کا مطلب ہے کہ اس طرح میں بتاتی ہوں. کلنا ہم سب مردوں یا عورتوں نے کہا لا لیے ہم ان سب کے لیے. ہم سب مردوں یا عورتوں نے کہا ان سب کے لیے. ठीक है. गुड. समझ तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह मुंतहा को. बहुत शुक्रिया बेटा आपका. जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक. अल्लाह मजीद फजिल. ठीक है, शाबाश. जी. अब ये है अनजलना इलैका, इसकी वजाहत कौन करेगा? अच्छा, सुमेरा ही है जी. सुमेरा, आप कीजिए माइक ओपन. जी. आप बताइए, अनजलना इलैका, इसमें कितने कलिमात हैं? इसमें 3 कलिमात हैं. 3 कलिमात. गुड. किस तरह से? एक फेल माजी है हम्म अनजलना, फिर ये इलाई जो है ये है हुरूफ है, और का जो है ये वो है इसमें ज़मीर. सही. ठीक है. और आपको पता है ये असल में था इला. जो हर्फ इला है ना, जब वो आगे किसी जमीर के साथ मिलता है तो वो इलई की शक्ल इख्तियार कर लेता है. ठीक ठीक है. है. अब आप इसका माना लगाइए, अनजलना इलैका. सुमेरा, जी जी. माना लगाइए इसका.
م، ना जो है ये अंजलना वही है, तस्निया या जमा मुजक्कर मुतकल्लिम या मोनस मुतकल्लिम। तो हम सब नहीं, हाँ हम सब होगा। हम सब मर्दों या औरतों ने उतारा हम्म, इलई का जो है उस एक मर्द की तरफ। उस, तुम एक मर्द की तरफ का, हाँ मुखातिब का। सही। अब आप दोबारा से लगाएं इसका तर्जमा सही से। हम सब मर्दों ने हम सब मर्दों ने उतारा हम्म। तुम एक मर्द की तरफ। सही, ठीक। अच्छा जी, अब आप इसके बारे में बताएं, ये क्या है? जी। आमना से है ये, आमनु पहला तो ये है वही है कि फेले माजी जमा मुजक्कर गायब है ये। मतलब हम्म। कि उन सब वो सब मर्द ईमान लाए, वो सब मर्द ईमान लाए। मा मा मतलब होता है उसके साथ होता है ना शायद, मा जी जी। हु। और हु जो ज़मीर है इसमें वो है वाहिद मुजक्कर गायब की, उस एक मर्द पर या उस पर। पर नहीं। उसके साथ, हाँ मा उसके साथ, उस एक मर्द के साथ। सही। वो सब मर्द ईमान लाए उसके उस एक मर्द के साथ। ठीक। अब ये भी बता दीजिए, शहीदा मिनकुम। शहीदा शहादत, उस एक मर्द ने शहादत दी। शहीदा मतलब यही है ना। यहाँ शाहिदा का माना है हाजिर होना। हाँ तो वो एक मर्द हाजिर हुआ। हम्म। मिन ये मिन का आपने बताया है, हाँ से मिन कुम। हाँ। तो हम्म। कुम जो है वो जमा मुजक्कर मुखातिब का की है। तो अ, तुम सब मर्दों से। सही। ठीक है, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। बस एक बात है, ये जो मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं ना, ये मैंने कुरान पाक से निकाले हैं, ठीक है? कुरान पाक की आयत में से ही मैंने लिए हैं, ये खुद से नहीं लिखे। इसलिए जब हम कुरान पाक की आयत का तर्जमा करेंगे ना, तब हम ये जो हम सीगों की इस तरह से वजाहत करते हुए पढ़ते हैं ना, हम सब मर्दों ने, सब औरतों ने, उन सब के लिए कहा, फिर ऐसे नहीं करना, ठीक है? हमें सीगे की समझ आ गई, बस सीधा तर्जमा, कुल न लहुम, हमने कहा उनके लिए, शहीद मिनकुम, वो हाजिर हुआ तुमसे, अनजलना इलैका, हमने उतारा तेरी तरफ, इस तरह से, ठीक है? बाकी समझने के लिए हम इस तरह कर भी लें जैसे हमने किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। अब आपका कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा सुमेरा, आप इसका भी माना लगा सकती हैं, लगाइए तो जरा, किसका? ये जो पहली आयत है इसका। अखरजा हुमा, अखरजा जो है उस एक मर्द ने निकाला। हम्म। ऐसा ही है ना, हुमा तो जमीर है। तो हुमा है उन दो औरतों को। क्यों उन दो औरतों को ही, क्यों? हुमा तस्निया मोनस गायब की जमीर है। अच्छा, और तस्निया मुजक्कर गायब की क्या ज़मीर है? और उसकी भी यही, दोनों सेम है। हाँ दोनों ही है ना। फिर हम यहाँ पर मोनस के लिए स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते? जी दोनों पे है। बताइए फिर। उस एक मर्द ने निकाला उन दो औरतों को या उन दो आदमियों को।
ठीक, उन दो मर्दों को या उन दो आदमियों को? औरतों को। हम्म मिम्मा मतलब होता है ना उसमें से। हम्म काना, हम्म काना मतलब वो थे, हम्म ने फी ही उसमें। शाबाश। काना कौन सा सीगा है? ये हम्म हम्म, वो ये है अच्छा, पहले ये पता कर लें कि काना कलीमा की कौन सी किस्म है। इसम है, फेल है या हर्फ है? ये फेल ही लग रहा है। एक हम्म फेल ही है ये। हाँ, फेल है और ये नून तो। अलिफ ना जो है इसमें हम्म ये मुतकल्लिम के लिए है। हाँ नहीं नहीं, ये तस्निया मुज़क्कर गायब वाला है। हाँ, अगर ये नाम मुतकल्लिम का होए तो उससे पहले साकिन आता। शाबाश, ठीक हो गया। अब समझ आ गई है ना सबक की आज की? जी ठीक है, अब कल हम इंशाल्लाह ताला कुछ मिसालें लाएंगे इस्म की, इस्म के साथ ज़माइर को पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो आपका काम है वो क्या होगा, ये देखिए, पिछली स्लाइड पे जाते हैं। ये जो हुरूफ है ना, हुरूफ, इनमें से चंद हुरूफ के साथ आपने ज़माइर की गिरदान बनानी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बोल के दिखाई थी। मतलब आप बी लेंगे ना तो बिही, बिहा, यानी बिही, बिहिमा, बिहिम, फिर बिहा, बिहिमा, बिहिन्न, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बिय, बिना। ये जो हमने ज़मीर पढ़ी, हु, हुमा, हुम, ये याद रखिएगा। जब इससे पहले वाला हर्फ ऐसा हो ना जिसके आखिर में या आती है, तो फिर हु, हुमा, हुम जो है ना, वो ही, हिमा, हिम में बदल जाते हैं। इसी तरह हिन्ना। और अगर जैसे ये बी है ना, बी, तो इसके नीचे जेर आ रही है, तो इस जेर की वजह से भी ही हो जाएगा, हु ही हो जाएगा, ही, हिमा, हिम। इसी तरह हिन्ना। जी, कुरान में मैंने पढ़ा तो ही काफी दफा आ रहा था। मैं यही सोच रही थी ही की हम्म जमीर तो हमने पढ़ी नहीं। हाँ, अब समझ आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उस अगर उससे पहले या साकिन आए तो फिर वो हु ही बन जाता है। हम्म चलेंगे, तो फिर बहुत अच्छा हो गया आज हमने ये सबक पढ़ा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां फरमाए और आपकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। और हम सबको ही अल्लाह ताला बेहतरीन शरह सद्र अता फरमाए कुरान फहमी के लिए, हर चीज़ के लिए, आमीन। ठीक है, फिर अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।